السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ باغپت کے اندر کس طریقے کا حادثہ پیش آیا، ایک ایسا حادثہ جس کو سننے کے بعد انسان کا دل دہل جاتا ہے، انسان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتا ہے۔ ایک بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا کہ مفتی ابراہیم صاحب جو ایک مسجد کے اندر امامت کرتے تھے، جب مسجد کے اندر امامت بھی کرتے تھے اور وہ ایک مکتب بھی چلاتے تھے، جس مکتب کے اندر کچھ بچے اور کچھ بچیاں پڑھتی تھی، اور ان کی جو فیملی تھی، ان کی 2 بیٹی تھی اور ان کی اہلیہ تھی، جو مسجد کے اوپر منزل میں ایک روم تھا، اس روم کے اندر ان کی فیملی رہتی تھی۔ لیکن ہوا ایسا کہ مفتی صاحب جب دیوبند گئے، وہ استقبال کرنے کے لیے گئے، وہ ملاقات کرنے کے لیے افغانستان سے عامر متقی صاحب جو آئے ان سے ملنے کے لیے گئے، لیکن ان کو کیا معلوم کہ میں ادھر جاؤں اور ادھر میری پوری فیملی ویران ہو جائے، میں ادھر جاؤں استقبال کرنے کے لیے اور میری پوری فیملی برباد ہو جائے اور کوئی حملہ ور اس پر حملہ کر دے۔ اس چیز سے وہ ناواقف تھے۔ لیکن جب مفتی صاحب دیوبند پہنچے تو ان کو فون آتا ہے، ان کو کال آتا ہے کہ آپ کی گھر میں ایک حادثہ ہو گیا ہے، آپ کی دونوں بچیاں وفات پا گئی ہے اور آپ کی اہلیہ بھی اس دنیا سے منتقل ہو گئی ہے، یعنی اس دنیا کو چھوڑ دی ہے۔ مفتی صاحب کا پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر وہاں سے لوٹتے ہیں، اور وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے دونوں بچیوں کو خون سے ریتا گیا اور ان کی اہلیہ کو بھی چاقو سے وار کیا گیا اور ان کو اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ لیکن وہاں کی انتظامیہ اور وہاں کی جو پولیس ہے وہ فوراً پہنچتی ہے وہاں، اور وہاں جانے کے بعد اس چیز کو دیکھ کر اور فوراً اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اور 6 گھنٹے کے اندر میں ہی اس قاتل کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ 2 نابالغ بچوں نے مل کر اس واقعے کو انجام دیا ہے۔ تو اس بارے میں کیا ہے، یعنی مفتی صاحب کے جو سسر ہیں اور مفتی صاحب کے جو سالے ہیں، انہوں نے اس چیز کو خلاصہ کیا ہے۔ آئیے پہلے اس کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل مجرم ہے کون۔ آئیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور ان کی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے اس واقعے کے بارے میں کیا کہا ہے۔ معلوم نہیں ہے کیسے قتل ہوا ہے۔ میں دہلی گیا ہوا تھا، دہلی سے تقریباً 2-2.5 گھر پہ آیا، کھانا کھایا میں نے آ کے۔ اس کے بعد میرے پاس فون آیا روڑکی سے کہ آپ کو کچھ معلومات ہے کیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری بہن کے تعلق سے اور 2 بچیوں کے تعلق سے کہ ان کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ پھر ہم یہاں سے گئے ہیں گاڑی کر کے، اور بھی محلے کے بہت سارے لوگ گئے ہیں، اور وہاں جا کر دیکھا جو مفتی ابراہیم ہمارے جو بہنوئی ہے ان کے تعلق سے بتایا کہ وہ دیوبند گئے ہوئے تھے، اور یہ معلوم ہوا کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اور ہم کچھ دیر وہاں رکے۔ پھر ہمیں کس کو گرفتار کر لیا ہے؟ مفتی ابراہیم کو یہ معلوم ہوا کہ مفتی ابراہیم کو پولیس لے گئی ہے پکڑ کے۔ اچھا جی، پولیس کیوں لے کر گئی تھی؟ پہلے کی شک کی بنیاد تھی؟ پولیس کو یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی پتنی کو یعنی آپ کی بہن کو اور آپ کی دونوں بھانجیوں کو مارا تو مفتی ابراہیم نے مارا، پہلے یہ لگ رہا تھا؟ ہم تو وہاں گئے، ہمیں یہ بتایا کہ مفتی ابراہیم کو پولیس لے گئی ہے، کس بنیاد پر لے گئی کس نہیں ہمیں وہ معلومات نہیں تھی۔ جب آپ گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ کچھ پتہ لگا آپ کو کہ کہاں پر آپ کی بہن کے اور دونوں بھانجیوں کے مار رکھا تھا؟ کہاں کہاں کوئی زخم وغیرہ پتہ لگے؟ ہم تو وہاں گئے، ہمارے جانے سے پہلے لاش اٹھا کر پولیس لے گئی۔ ہم نے وہاں گاؤں میں فون کرائے کہ ہمارے جانے سے پہلے لاش نہ اٹھائی جائے، لیکن لاش ہمارے جانے سے پہلے اٹھا لی گئی اور ہم نے نہیں دیکھا۔ مجھے یہ بتائیے، اس معاملے میں پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے 2 لڑکوں کو، 2 نابالغوں کو حراست میں لیا ہے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے وہ دونوں لڑکے جن کو آپ کے بہنوئی صاحب مفتی ابراہیم صاحب پڑھاتے تھے، ان کی پٹائی کی وجہ سے انہوں نے ان کے پریوار سے بدلہ لیا اور مار دیا ان کی پتنی کو اور دونوں بچیوں کو؟ پولیس کے اس دعوے پر میں مطمئن نہیں ہوں بالکل بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پولیس مجھے لے گئی اور یہ کہا کہ دیکھو ہم نے ملزم پکڑ لیا، اور وہ بیٹھے کمرے کے اندر 2 بچے ہیں، اور آپ بھی دیکھ لیجئے اور ان سے بات کر لیجئے۔ جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا وہ بچے تو ان کے پاس پڑھنے والے بچے تھے، اور وہ بچے مجھے دیکھ کر رونے لگے، اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے کیا اچھا کیا ہے، اتنا بڑا کام کر گئے۔ وہ بچے رونے لگے اور مجھ سے میرے سامنے وہاں بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ ہم نے نہیں کیا ہے بالکل بھی، ہم سے تو زبردستی پولیس مار پیٹ کرا کر یہ بات کہلوا رہی ہے۔ یہ ان دونوں لڑکوں نے کہا ہے جن کو پولیس کہہ رہی ہے کہ ان دونوں نے یہ جو ٹرپل مرڈر ہے وہ کیا ہے؟ جی، دونوں نے کہا، پولیس کی موجودگی میں مجھ سے کہا ہے دونوں نے۔ میں نے یہ کہا یہ بچے تو منع کر رہے ہیں، بچوں کو ڈانٹا۔ اس پہ ہمارے ساتھ 1-2 ساتھی تھے، ان کی بحث بھی ہوئی، میں ذرا اس ٹائم تک زیادہ نہیں بولا، اور پھر کہا کہ اچھا آپ لوگ باہر جاؤ، ابھی تھوڑی دیر میں پھر دیکھتے ہیں۔ مطلب جب ان بچوں نے، جن بچوں کے اوپر یہ آروپ آیا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد سے ناراض ہو کر، ان کی پٹائی سے ناراض ہو کر، مفتی ابراہیم سے ناراض ہو کر کے مفتی ابراہیم کی پتنی کو اور ان کی دونوں بیٹیوں کو مارا، ان بچوں نے جب آپ لوگوں کو بتایا، مطلب آپ کو جب بتایا کہ پولیس قبولوا رہی ہے زبردستی مار پیٹ کر کے،
तो ये बात जब आप कह रहे हैं पुलिस के सामने वो करा था, तो आप लोग उनसे और बात करने की कोशिश तो करते कि पुलिस ने आपको उन बच्चों की सुनते ही बाहर कर दिया? जब ये उनसे कहा गया भाई बच्चे तो इस बात को मना कर रहे हैं और आप लोग जबरदस्ती करा रहे हैं, तो कुछ थोड़ा बहस मुबाहिसा शुरू हुआ। पुलिस वालों ने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, फिर थोड़ी देर के बाद आना। फिर हमें बाहर कर दिए। अब उन बच्चों से क्या बात किया है, क्या उनके ऊपर दबाव बनाया, मारा पीटा, क्या किया हमें मालूम नहीं। वो कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? मतलब अगर देखें तो पुलिस कह रही है ना नाबालिग हैं, 18 से कम के हैं और इन्होंने मार रखा है, तो कितने बड़े बच्चे हैं? मैं तो ये समझता हूँ शायद 13-14 साल के हो गए, बहुत ज़्यादा हो तो 15 साल, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है। तो आपको लगता है ऐसा कि 13-14 साल के बच्चे ये इतनी बड़ी वारदात अंजाम दे सकते हैं, इतना बेरहमी के साथ जघन्य अपराध कर सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं 2 बेटियों का और 1 माँ का? मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि मैं पुलिस के इस दावे से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। और हमें जब बाहर निकाल दिए, फिर दूसरी बार ले गए कि चलिए आप मालूम करिए। फिर उन बच्चों से मालूम किया, फिर भी वो बच्चे ही कहने लगे कि नहीं, हमें तो हाथों की उंगलियों के अंदर मालूम नहीं क्या डाल बता दे। वो ऐसा दबाया तकलीफ देने के लिए पुलिस वालों ने, और मुंह को हमारे पानी में घुसाया और मारपीट किया और ज़बरदस्ती हमसे कह रहे हैं। मैंने फिर पुलिस वालों से कहा ये तो आप लोग ज़बरदस्ती इन बच्चों को पर जुल्म कर रहे हैं और आप की कार्रवाई से हम मुतमईन नहीं है। इस पर मेरी और पुलिस वालों की खूब बहस हुई है। और बोलिए। और 8-10 थे पुलिस वाले, स्टार वाले भी थे, उनमें बहुत देर तक बहस होती रही। फिर कहने लगे कि हमें आपको कैसे मुतमईन करें। मैंने कहा मुतमईन जो तरीका होता है उस तरीके से करिए, आप तो बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं कि अच्छा आप यहाँ से जाइए। आप मैंने कहा ठीक है हम चले जाते हैं, आप हमारी FIR दीजिए कि कल लाना, लेके जाना, अब जाओ। बस ये बात मेरी उनकी हुई है। मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। और चूँकि मेरी बहन का कत्ल हुआ, मेरी भांजियों का कत्ल हुआ, मेरे 3 बच्चों का कत्ल हो गया, मैं परेशान हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी सीट के MLA से, अपनी सीट के MP से और अपनी यूपी हुकूमत से, ख़ास तौर से वज़ीर आला से ये दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ पर कोई मजलूम बेकसूर पर जुल्म ना हो और जो जालिम है वो बचना नहीं चाहिए। और हमें इंसाफ दिलाने के लिए हमारा ताउन करें। और मैं इस मामले में CBI जांच चाहता हूँ। अच्छा, CBI जांच चाहते हैं आप। एक चीज और बताइए, आपके बहनोई जो हैं वो दारुल उलूम देवबंद गए हुए थे कि वहां पर कल उनका विजिट था, जो फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं उनको उनसे मिलने के लिए वहां गए हुए थे, इनको बुलाया हुआ था, क्योंकि पुलिस का शक तो इसी बात पर गहरा है ना कि शौहर जो हैं वो लापता हैं मुफ्ती इब्राहिम साहब, और उनके पीछे ये हो गया। तो अब उनको छोड़ दिया या क्या किया है? मुझे मालूम नहीं है, वो ये तो पता लगा है, बताने वालों ने बताया कि वो देवबंद गए हुए थे, लेकिन मुझे हकीकत का मालूम नहीं है इस बारे में। मेरे साथ इस वक्त में जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल राज़िक जुड़ रहे हैं, जो इस मामले को देख रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी, क्योंकि इन लोगों से ये वाबस्ता हैं, ये पूरी टीम जमीयत उलमा हिंद से भी जुड़ी हुई है, और ये खुद भी जो बच्चियों के मामू हैं, उन इसराना के जो भाई हैं जिनका कत्ल हुआ है, ये भी जमीयत से जुड़े हुए हैं। उनके अलावा जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं, उनके भाई जाकिर भी हैं। मैं अभी इनसे भी मालूम करूँगा। आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ मुफ्ती साहब, इस मामले में क्या फॉल प्ले नज़र आ रहा है? आपको लगता है कि 2 नाबालिग बच्चे 13-14 साल के वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं? देखिए, मुझे क्या कोई भी आदमी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि 2 बच्चे इतने छोटे और 3 इंसानों का कत्ल कर दे, एक का नहीं 3 का, और उनमें एक बाकायदा जो बड़ी बच्ची है, जो मुफ्ती साहब की बहन है, वो 30 साल की और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। तो कोई भी आदमी जब किसी को कत्ल करेगा, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने बचाव के लिए कुछ अपने हाथ में चलाएगी इधर उधर, लेकिन क्या उन्होंने अपने दिफा के लिए कोशिश नहीं की? चिल्लाएगी, बच्चे चिल्लाएंगे, क्या महल्ले में किसी ने आवाज़ नहीं सुनी? अगर वो 2 नाबालिग, जैसे कि बयान मीडिया के जरिए आया कि पुलिस ने बताया है कि उन बच्चों ने कत्ल किया है और उन बच्चों को CCTV में दिखाया गया, तो एक तो ये कि वो CCTV फुटेज जारी किए जाए, वो वीडियो दिखाई जाए कि कौन उस दरमियान आया गया है वो वहां पर। तो मस्जिद के जो प्रेमिसेस हैं, मस्जिद का जो अहाता है, और ऊपर जो इमाम साहब का हुजरा बनाया जहां उनकी बीवी और दोनों बेटियां थीं, वहां CCTV वगैरह लगे हुए हैं? आपने इसका दरियाफ्त किया? हाँ, बताया मुफ्ती साहब ने कि मस्जिद में CCTV है, और जब इन्होंने मुतालबा किया कल पुलिस से कि हमें CCTV फुटेज दिए जाए, तो इन्हें कहा हम बाद में देंगे, पहले आप मैयत लेकर के जाइए, दफनाइए। दफनाने के बाद अभी तक CCTV फुटेज वीडियो नहीं दिखाया गया। और जो खबर आई है कि भाई उन बच्चों से उनके जो फिंगरप्रिंट्स लिए गए, उससे ये साबित हुआ है। और इसी तरह यानी 6 घंटे के अंदर अंदर पूरा मसला हल कर दिया पुलिस ने। बड़ी फास्ट पुलिस है यूपी की कि 6 घंटे में सारा मसला निपटा दिया उन्होंने। दूसरी बात, वो बच्चे अगर कत्ल करके गए, जो दिखाया पुलिस ने कि उनके हाथ में चाकू था या उनके हाथ में हथौड़ा था, जो रिपोर्ट आ रही है, जो खबर आ रही है, तो रास्ते में आते जाते क्या महल्ले के लोगों ने नहीं देखा उन बच्चों के हाथों में भी चाकू लेके कहां जा रहे हो, हथौड़ा लेके कहां जा रहे हो, और वापस जाते हुए नहीं देखा किसी ने? कोई बयान देने वाला नहीं है। और वो अपने घर में गए, जब पुलिस ये भी बयान जारी कर रही है कि उनके कपड़ों पर खून के धब्बे थे, तो रास्ते में किसी ने देखा नहीं, पूछा नहीं उनसे ये खून लगे हुए कपड़े ये कहां से आ रहे हैं? या उन घर वालों ने नहीं पूछा भाई हथौड़ा लेके चाकू लेके कहां जा रहे हो और ये खून कहां से तुम्हारे कपड़ों पर लगा? किसी ने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी। 3 मर्डर हो रहे हैं एक साथ, तो तीनों को नहीं मारा जा सकता ना। वो भी मारने वाले 2 बच्चे हैं, तो एक एक करके मारा होगा, तो दूसरे बच्चे होंगे, या पहले उनको मारा तो माँ उनकी चिल्लाई होगी, माँ को मारा तो बच्चे चिल्लाए होंगे, महल्ले वालों ने सुना होगा, इधर उधर दौड़े तो निकल के भाग जाते। क्या 2 बच्चे 3 आदमियों को
कैसे एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं और उनका मर्डर कर सकते हैं, ये थ्योरी समझ से बाहर है। मतलब आपको पूरा डाउट है इस बात का कि दो बच्चे जो हैं वो 3 लोगों का, दो मासूम बच्चियों का और उनकी माँ का कत्ल नहीं कर सकते? मुझे नहीं डाउट, हर एक को डाउट है। आप कैसे यकीन कर सकते हैं इस पुलिस की बात पर कि 3 बच्चों की एक बड़ी में लड़की है, माँ है उनकी, और 2 बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे, उन 3 का 2 बच्चे कत्ल कर देंगे। तो पुलिस को चाहिए कि उसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज, पूरा वो, और वहाँ की लोकेशन देखे, कि उस आसपास की मोबाइलों की भी लोकेशन देखे, किसके आना जाना हुआ, और फिर ये भी उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या वो ऐसे ही सो रहे थे या उनको कुछ दे करके, पहले कोई ऐसा तो नहीं कि कोई नशे की चीज दी गई हो तब उनका मर्डर किया गया हो। हर एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के बगैर पुलिस का ये बयान जारी कर देना 6 घंटे के अंदर, पुलिस को चाहिए पहले तफ्तीश करे, जांच करे, हर एंगल से जांच करके उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए और अपना बयान जारी करना चाहिए। मतलब जमीयत जो है वो यूपी पुलिस की, खासतौर से बागपत पुलिस की जो कारकर्दगी है, पुलिस का जो रोल है उस पर सवाल उठा रही है। आप मतलब डाउटफुल हैं कि ये जो कुछ पुलिस थ्योरी पेश कर रही है आप लोगों को यकीन नहीं है? नहीं, हमें यकीन नहीं आ रहा इस बात पर, और कोई यकीन करेगा भी कैसे? हर एक आदमी देख सकता है कि 2 बच्चे 3 का मर्डर करके चले गए और किसी को खबर नहीं है। बाद में पुलिस को पता लग रहा है, जो पुलिस बयान जारी करके हमने सीसीटीवी फुटेज से देखा है, तो वो फुटेज भी जारी करें, वो वीडियो पूरी जारी करें उस वक्त की, और हर एंगल से उनके जो फिंगरप्रिंट्स लिए जाने चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी रिपोर्ट आने तक जांच जारी रहनी चाहिए। पुलिस का बयान तो आ गया, हमने भी देखा है, वो वीडियो भी चल रहा है पुलिस के बयान का। इतनी जल्दी बयान जारी कर देने, तफ्तीश मुकम्मल हो गई, इसका मतलब ये सबसे स्मार्ट पुलिस जो है वो यूपी पुलिस हो गई। जो मामले पेंडिंग पड़े हैं सालों से, कभी उनको तो सुलझाया नहीं गया, ब्लाइंड केसेस को, इसको पुलिस ने सुलझा लिया। इसलिए शक की जो घड़ी है वो आपकी भी उसी कैटेगरी में आ रही है। बिल्कुल, ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं कि भाई 2 बच्चे जा रहे हैं, और फिर जो मुफ्ती साहब ने अभी बताया कि थाने में वो बच्चे थे, उनसे इनको मिलाया गया, और बच्चे इनसे कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं किया, हमें जबरदस्ती हमसे कहलवाया जा रहा। पुलिस की मौजूदगी में वो बच्चे बयान जारी कर रहे हैं, छोटे बच्चे कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब के इनके सामने पिटाई भी की है उन बच्चों की, और इसका मतलब वो बच्चे डर के, सहम के, पुलिस के डर की वजह से कह रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ मारना और पीटना उन बच्चों का, और उनसे ये बयान जारी करा लेना। तो अभी इसकी इंक्वायरी में, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी हो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो मजलूम है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, बेकसूर के खिलाफ कार्रवाई ना हो, कसूरवार बचना नहीं चाहिए, जो जालिम है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उन बच्चों ने एक बात ये भी तो कही है कि मुफ्ती इब्राहिम साहब जो है वो मारते पीटते थे और उनकी वजह से ये बच्चों से बदला लिया गया। अब वो बात किसके सामने कही है? तो पुलिस बयान जारी कर रही है ना, ये बयान पुलिस का है, ये एसपी, एडिशनल एसपी सब कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं डंके की चोट पे इस बात को कि ये बच्चों का ही बयान है, बच्चों ने कहा कि हमने जो है वो बदला लिया है। नहीं, पुलिस तो ये भी कह रही कि बच्चों ने कबूला है अपना जुर्म, और उन बच्चों का बयान मुफ्ती साहब के सामने कुछ और है कि हमसे जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है, और ये अकेले में नहीं लिया मुफ्ती साहब ने, पुलिस की मौजूदगी में कहा है, और पुलिस ने इनके सामने उनके साथ डांट डपट की है, और मारा भी है, ये कह रहे कि उनको मारा भी है। तो ये सारी बातें डाउटफुल हैं, और इन तमाम बातों से इत्मीनान नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसकी तफ्तीश हर एंगल से होनी चाहिए, और यूपी के जो डीजीपी हैं या वहाँ के वजीर आला हैं, उनको इसकी तफ्तीश करानी चाहिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ हैं, उनको इसकी तफ्तीश करानी चाहिए, और मजलूमों को इंसाफ मिलना चाहिए। तो जमीयत इसकी पोस्टमार्टम चल रहा था, वहाँ हमने कुछ पत्रकार बंधु थे, उनसे बातचीत हुई, और कुछ प्रशासन के भी लोग थे, जो ज़िला बागपत के प्रशासन के लोग थे, उनसे बातचीत हुई। उन बातचीत से पता ये चला कि पुलिस ने जो पहली प्रक्रिया थी पुलिस की, वो कहीं ना कहीं जो इमाम है वहाँ के मुफ्ती इब्राहिम साहब, उनको फंसाने की प्रक्रिया थी। उनके ऊपर पुलिस का शक था, और क्या उन्होंने ही मार दिया बीवी और दोनों बेटियों को? हाँ, उनका शक ये था। क्यों? अब ये तो पुलिस प्रशासन का मामला है कि क्या उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या मामला था, ये भी बताइए। आपको किसी ने बताया ये कि वो उनके ऊपर शक था पहले से? जिला अस्पताल के में जो प्रशासन के लोग थे, उन्होंने बाकायदा वीडियो दिखाई, हमें वीडियो दिखाई, और इस वीडियो में ये बताया गया कि जो उनके मोबाइल के नंबरात थे, डायल्स कॉल्स थे, वो सारे डायल्स कॉल्स और रिसीविंग कॉल उसके मोबाइल से डिलीट कर दिए। किसके? मुफ्ती इब्राहिम के। अच्छा, किसने कर दिया वो? ये बताया जा रहा है कि वहीं का कोई एसआई है या कोई दरमान वगैरह है, जो मतलब कोई सरकारी महकमा के लोगों ने ही उसके मोबाइल को लेकर उनके जो कॉल डिटेल्स थे उनको डिलीट किए गए। तो इस पर भी आप लोगों की शक की सुई आई? पूरी तरीके से शक की सुई तो है ही, ये तो बिल्कुल पूरा शक होना लाजमी है कि आखिर किस बुनियाद पर और किसने उनके कॉल्स को, जो उनके कॉल डिटेल्स थी उनको डिलीट किए गए, किस बुनियाद पर डिलीट किया गया। एक चीज और हमारे सामने आई है आज के वारदात से पहले, उन नाबालिग लड़कों ने कत्ल से पहले जब ये वारदात को अंजाम दिया, उससे पहले सीसीटीवी वगैरह बंद कर दिया था, कुछ ऐसी बात आई है? हाँ, ये है कि जो मस्जिद के सीसीटीवी कैमरे थे उनको बंद किए गए, लेकिन आसपास में बहुत सारे बताए जा रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा मौजूद। एक तो यह है कि सीसीटीवी कैमरा किस बुनियाद पर बंद किया गया, किसने किया, और ये जो 2 नाबालिग बच्चों के बारे में बात बताई जा रही है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वो 2 नाबालिग बच्चे इस तरह के कारनामा अंजाम दे सकते हैं। जी हाँ, तो आपने देखा और आपने सुना कि मुफ्ती साहब के जो ससुर हैं उन्होंने किस तरीके से किया, खुलासा किया है कि जब हम लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे और वहाँ जाने के बाद जो बच्चे को गिरफ़्तार किया गया था, जिन नाबालिग बच्चे को गिरफ़्तार किया गया था, उनको मेरे सामने में पूछताछ हुई तो उन्होंने
کہا کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں، ہم نے اس چیز کو انجام نہیں دیا ہے، ہم نے قتل نہیں کیا ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا آپ کی دماغ اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ چھوٹے سے بچے نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوگا؟ یا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ضرور کمنٹ کریں اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی مفتی صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو ان کی اہلیہ، ان کی 2 بچیاں اس دنیا سے گزر گئی ہے، اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔